میرے پیغام کا عنوان ہے عید پینتیکوست کلیسیا کا جنم دن، اور ہم پڑھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 2 باب پہلی 4 آیات۔ یہاں لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ہے، اور وہ سب روح سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ کہ یہ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی عید پینتیکوست سے پہلے کچھ کرنے کو کہا تھا، وعدہ بھی تھا، حکم بھی تھا۔ آئیے پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل 24 باب 49 آئے۔ اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالمی وعدہ سے قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا وعدہ پورا ہو جائے گا، روح ضرور آئے گا، لیکن پہلے اسی شہر میں ٹھہرے رہو۔ اس وقت تک باہر نہیں جانا جب تک روح القدس نہ مل جائے۔ اور ساتھ ہی ایک اور والا ایمان پہلا باب اس کی 8 آئے، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں باقی زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں۔ یہ 2 باتیں یسوع مسیح نے کہی آسمان پہ جانے سے پہلے۔ پہلی بات کہ ابھی باہر نہیں جانا، منادی نہیں کرنی، اسی شہر میں یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اور دوسری بات جب تم ٹھہرو تو روح القدس پاؤ گے، قوت پاؤ گے، اور جب قوت مل جائے تو ساری دنیا میں پھیل جاؤ۔ یسوع کی گواہی دینا۔ یسوع مسیح یہ باتیں کہہ کے آسمان میں چلا گیا۔ آسمان پر جانے کے 10 دن بعد یہودیوں کی عید پینتیکوست، ایسٹر کے بعد 40ویں دن یسوع آسمان پہ اٹھایا گیا۔ 10 جمع کر لیں۔ عید یعنی جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید ہے جسے عید قیامت المسیح کہتے ہیں، اس کے بعد 40 دن یسوع زمین پہ رہا، 40ویں دن آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور جاتے وقت کہا گیا کہ تم جب تک روح القدس نہ ملے باہر نہیں جانا۔ تو جانے کے 10 دن بعد کتنے دن ہو گئے زندہ ہونے سے لے کر 40 جمع 10 کتنے دن ہو گئے؟ 50 دن۔ جی اٹھنے کے بعد 50ویں دن یہودیوں کی عید پینتیکوست تھی، اور یہودی پوری دنیا سے وہاں جمع تھے، 12 ملک کے لوگ وہاں یروشلم میں تھے۔ روح القدس نازل ہوا۔ بولے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ ان کی عید پینتیکوست ہماری عید پینتیکوست بن گئی۔ وہ تو تب کیا کرتے تھے؟ یاد بناتے تھے مصر سے نکلنے کی، اور اس کے بعد قربانیاں دیتے تھے، ہدیے دیتے تھے۔ عید فصح کے بعد 50ویں دن پہلے پھلوں کی عید، ادھر ہمیں پہلے پھلوں کی عید مل گئی۔ ہاللیلویا۔ روح القدس نازل ہوا، اور جب روح القدس نازل ہوا تو یہ کلیسیا کا جنم دن بن گیا، یہ کلیسیا کا برتھ ڈے بن گیا۔ پینتیکوست کے دن دنیا کی پہلی کلیسیا قائم ہو گئی یروشلم میں۔ 3000 لوگ مسیح پر ایمان لے آئے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہیپی برتھ ڈے ٹو دا چرچ۔ کہیے ہیپی برتھ ڈے چرچ، ہیپی برتھ ڈے چرچ، ہیپی پینتیکوست۔ کہیے ہیپی پینتیکوست۔ ایک دوسرے کو کہیے ہیپی پینتیکوست۔ جب روح القدس نازل ہوا تو کچھ واقعات ہوئے۔ پلیز اسکرین پہ دیکھتے چلے جائیے۔ آئیے میرے ساتھ اس میں دیکھیں۔
जब ईद पेंटिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यीशु ने कहा था यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, एक जगह जमा थे 120 लोग। उन्हें सुनने कौन कौन थे? मुगस्सा मरियम, चांद और औरतें, यीशु मसीह के शागिर्द और यीशु के सगे भाई, क्योंकि वो मसीह पर ईमान ले आए थे यीशु के जी उठने के बाद। टोटल 120 लोग एक जगह जमा थे। सुनिए, एक जगह जमा होने का मतलब है शनाख्त, इत्तेफाक, इत्तेहाद। 120 लोग इकट्ठे एक जगह जमा थे, इसका मतलब है देवाली यूनिटी, इत्तेहाद, शनाख्त, और एक ही दुआ दरखास्त कर रहे थे। वो एक ही बात के लिए 120 लोग सब इकट्ठे होकर एक दिन होकर एक ही बात के लिए दुआ कर रहे थे। और वो कौन सी दुआ थी? सुने, वो दुआ थी, ऐ खुदावंद तुम्हें जाते वक्त कहा था यरूशलेम से बाहर ना जाना और इंतजार करना रूह कुद्दूस का, और तुमने कहा था कि मैं रूह कुद्दूस भेजूंगा। ऐ खुदावंद रूह कुद्दूस को भेज दे। एक ही दुआ, इसको कहते हैं यगानत की दुआ, इत्तेहाद की दुआ। और जहां आए थे ना, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, उसके पीछे लिखा है जब इत्तेहाद करके, इत्तेफाक करके, बाहमी रजामंदी के साथ सब एक दिन होकर एक बात के लिए दुआ करेंगे, 2 या 3 हो या बड़ी जमात हो, एक ही बात के लिए जमा होंगे तो मैं उनकी सुन लूंगा। ये मतलब है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूं। और मैंने आपको बताया कि उसके पीछे जो बुनियाद बताई गई है इत्तेहाद से, यगानत से, एक ही राय, एक ही ख्याल, फर्क नहीं। जब एक ही बात के लिए इकट्ठे मिलकर दुआ करेंगे तो क्या बात होगी। खुदावंद ने एक आधार की जी दुआ है वो ही नहीं, मतलब कि पंजाबी च कहते वो ही नहीं मान ते जब सारे मिलके एक ही गल वास्ते दुआ करोगे तो फिर खुदावंद की हजूरी जड़ी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਚਲ मच जाएगी। खुदा कहेगा कि ओ कोई है नहीं जिन्हें सारे एक ही गल वास्ते दुआ कर रहे हैं, तो खुदावंद कलाम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर क्या हुआ? एक दिन जब दुआ कर रहे थे, मैंने इसलिए कहा कि सामने रहे, प्लीज सामने देखिए। जब ईद पेंटिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे, सब जगह कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। जब इकट्ठे दुआ करते हैं, एक मकसद के लिए दुआ करते हैं, तो आसमान से आवाज आती है। आपको सुनाई दे या न दे, आपके कानों में सुनाई देती है। सबको कोई लाउड स्पीकर लगा के आवाज ना भी आए, कोई आसमान से रहना से आवाज ना भी आए, हर एक के कान में आवाज आ रही होती है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, ऐसा ही होगा, मैं बरकत दूंगा, मैं शिफा दूंगा। जब इकट्ठे दुआ कर रहे हो तो फिर आसमान से आवाज आई, जोर की आंधी का सन्नाटा, बहुत बड़ा थंडरस्टॉर्म, बहुत बड़ा तूफान, बड़ी आंधी, जोर की आंधी, और जोर की आंधी के साथ बादल भी गरजे, आग के शोले भी नजर आए। ये क्या था? हेलो, मांग तो रूह कुद्दूस रहे थे, लेकिन ये क्या हो गया? वो कहते हैं रूह कुद्दूस नाज़िल कर जिसका वादा किया, हुआ क्या? जोर की आंधी और आग के शोले और बादल की गरज, और सारा घर जिसमें वो बैठे थे हिल गया, ज़लज़ला आ गया। ये क्या था? सुनिए बहुत से, मैं आपको बताता हूं ये क्या था। पढ़िए ज़रूर सीखता हूं। 19वीं बात की 16वीं से 18वीं आयत, इन आयात के मुताबिक सुने, खुदा ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल को कोई सीना के पास ले आ, मैं उतरूंगा। और जब खुदावंद बनी इस्राएल के लिए वहां पे उतरा तो क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि इस आयत के एंड में आइए, यहां से सब सामने देखें। और कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया। धुआं कब होता है? जब आग लगती है, जब शोले होते हैं। और कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोले में होकर उसमें उस पर उतरा, और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। पुराने अहदनामे में
हालेलुया। पुराने आदत में ऐसा ही होता था, खुदा अपने नए में भी ऐसा कर रही है। अब बात सुने, तब खुदा जाहिर होता था, नजर भी नहीं आता था, सिर्फ मूसा से बातचीत होती थी, लेकिन ये निशानियां बताती थी खुदा ऊपर आ रहा है। और आज ईद पेंटेकोस्त के दिन खुदा नाज़िल हुआ। रूह कुद्स, बाप और बेटा, रूह कुद्स तीन जो है, ये तीनों तस्वीर के अकलीन है। एक बाप कहते हैं, दूसरा बेटा, तीसरा रूह कुद्स, लेकिन ये तीनों एक ही हैं। बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं, मेरी तरफ देखें, आपने कभी कौन देखी है? ट्रायंगल। हेलो स्कूल के बच्चे, तो कौन देखी है? ट्रायंगल देखा है। उसके कितने जाविये होते हैं? 3 जाविये होते हैं, लेकिन होती वो त्रिकोण एक ही है। कितने जाविये होते हैं? त्रिकोणें कितनी होती हैं? तो एक त्रिकोण के 3 जाविये, लेकिन एक ही डायग्राम। इसी तरह से बाप और बेटा और रूह कुद्स एक है, 3 जाविये हैं, तीनों की अलग खिदमत है, तीनों की अलग जिम्मेदारी है। अब रूह कुद्स नाज़िल हुआ। कोई सीना पर आंधी और गरज और शोले जब आए तो एक शरीयत उनको मिली, 10 हुक्म, और अब उनको क्या मिला? रूह कुद्स मिला। ठीक है। और उस वक्त जब उनको खुदा ने बातचीत की, तो उस दिन से बनी इस्राएल एक कौम बन गए, एक कौम बन गए। और आज जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ, जितने लोगों ने यीशु मसीह का कलाम कबूल किया, 120 की जमात के अलावा 3000 लोग मसीह पर ईमान ले आए, तो पहली कलीसिया वजूद में आई। बोले हालेलुया। कोई सीना पर एक कौम का वजूद हुआ, कोई सीना पर एक कौम बनी। लेकिन बाला खाना पर जहाँ पे 12 शागिर्द थे और 120 की टोटल जमात, वहाँ कलीसिया का जन्म हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, कहिए हालेलुया। यहाँ देखिए और सुनिए, जब ईद पेंटेकोस्त का दिन आया, कब था ये? यहूदियों का ईद फसह के बाद 50वां दिन, जब वो नजराने लाते थे, तो ईद उनकी ईद थी। तो वो सब 120 लोग एक बाला खाना में जमा थे, इत्तेहाद से, इत्तेफाक से, कि आंधी का सन्नाटा आया, खुदा की हुजूरी का एहसास कराया। अगर उस वक्त आंधी, सन्नाटा और खुदा आ सकता है, तो आप भी शोले नाज़िल हुए। तो खुदा आया, ये रूह कुद्स आया। और उसके बाद उसे सारा घर जब वो बैठे गूंज गया, सलसला गया। तो तब भी ऐसा था, पहाड़ हिल गया था, अब वो घर हिल गया। तब ये इस बात का सबूत था, ताकि पता चले कि रूह कुद्स खुदा है। हालेलुया। और उन्हें आग के शोले किसी भटकी हुई ज़बान में दिखाई दी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर सवारे हो गए। बोले हालेलुया। रूह कुद्स नाज़िल हो गया। किस लिए हुआ? यीशु ने कहा क्या था? किस लिए हुआ? क्या कहा था? यीशु ने कहा था, पहले रूह कुद्स ले लो, उसके बाद पूरी दुनिया में फैल जाओ। लिहाजा रूह कुद्स आया, वो सब गैर सवारे बोलने लगे, रूह कुद्स से मामूर हो गए। उसी दिन 3000 लोग कलीसिया में शामिल हुए, और उसके बाद ये आग पूरी दुनिया में फैल गई। एक लहर थी जो पूरी दुनिया में फैल गई। पहले यरूशलेम हिल गया, बाला खाना हिल गया। यरूशलेम में के बेशुमार लोग मसीह पर ईमान लाए, कलीसिया तरक्की करती चली गई, तादाद बढ़ती चली गई। 3000 से 5000 हो गए, और तादाद बढ़ती गई। उसके बाद सामरिया में चले, यहूदिया का सारा इलाका कलीसिया कायम हुई, फिर सामरिया में, और उसके बाद जमीन की तह में जहां देखे आप लोग रूह कुद्स से भरे हुए लोग नजर आएंगे। हालेलुया। ये लहर की जो आग थी, फैलती चली गई। हालेलुया। कहिए हालेलुया। कितने हैं जो चाहते हैं कि उस शादी आसम की तकमील करें, वो शादी आसम को लेकर निकले और रूह को जीते, फैल जाए दुनिया में। लेकिन शुरू कहां से करना है? यरूशलेम से। बाद में यहूदिया सारा, फिर सामरिया, उसके बाद जमीन की इंतहा। ये नहीं कि आज रूह कुद्स मिला तो डायरेक्ट पुर जमीन की इंतहा, नहीं, घर से शुरू करें,
گھر سے شروع. اپنی بہن کو تعلیم دیں, توبہ کی, نجات کی, پانی کے بپتسمے کی, روح القدس کی تعلیم دیں. اپنے بھائی کو دیں, اپنی بیوی کو, اپنے ہسبینڈ کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ملنے جلنے والوں کو, اپنے پڑوسیوں کو جن سے روز ملاقات ہوتی ہے ان کو بتائیں یسوع مسیح ہوا, دفن ہوا, جی اٹھا, آسمان پہ ہے, اس نے روح القدس بھیج دیا ہے. آؤ یسوع مسیح کو نجات دیتا قبول کر کے پانی کا بپتسمہ لو, پھر روح القدس سے معمول ہو جائے.